आज के एपिसोड में हम आपको स्प्लीन की क्लिनिकल और फिजियोलॉजिकल कंप्लेंट्स के बारे में बताएंगे। इसमें पहला है क्लिनिकल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में फर्स्ट पॉइंट पल्पिटेशन, which means during diagnosis when you want to palpitation of or about the spleen. So in normal condition, a normal spleen palpitation is absent because it lies underneath the 9th, 10th and 11th ribs. You can see in figure. You can see in figure, spleen lies underneath 9th, 10th and 11th rib. So it is not palpated during diagnosis. But when it undergoes enlargement of spleen condition, it enlarges below the 11th ribs, and it is the condition when you can feel the palpitation of spleen. Not in normal spleen, it can be felt only in abnormal condition while spleen undergoes enlargement. Number second, splenectomy. If it is a need to the surgical removal of spleen of our body, then after surgery it can be removed from the body. So it is known as splenectomy, which means surgical removal of the spleen from the body. Third point is splenic infarction. It is the condition when the small arteries of the spleen undergoes obstruction, resulting a pain is felt in the left shoulder, which is known as Kehr's signs. Kehr's sign. Mark this Kehr's sign. Splenic infarction. It is the obstruction of splenic arteries, resulting a pain produced which reaches up to the tip of the left shoulder, is known as splenic infarction, or according to the name of Kehr, it is also known as Kehr's signs. It is very valuable for the point of examination. It can be asked you, what is Kehr's signs? You can say Kehr's signs is the splenic infarction or obstruction in the arteries of spleen, which leads to a pain which runs reaches up to the tip of left shoulder. Number 4, referred pain. When pain produces from the tissues of the spleen, this pain is referred in the epigastrium region. Lesion is found in the spleen, but pain is felt in the epigastrium. So it is known as referred pain of spleen. Number 5 is suture, which means sewing. If there are so many or single tears or small tears of the spleen can be repaired by the suturing.
Number 6, splenic puncture. If effusion or abnormal fluid accumulation takes place in the spleen, and for the removal of or sucking of or aspiration, for the aspiration this abnormal fluid from the spleen can be done by entering NED in between the 9th and 10th intercostal space in the mid axillary line. या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, पल्पिटेशन, जो पहला पॉइंट दिया गया पल्पिटेशन, इसका मतलब उसकी धड़कन को सुनना, उसके मूवमेंट को सुनना। तो जब स्प्लीन नॉर्मल कंडीशन में होती है तो जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं 9th, 10th और 11th रिब्स के नीचे पड़ी होती है, इसलिए आपके फिंगर वहां तक पहुंचते नहीं हैं, इसलिए आपको उसके पल्पिटेशन के बारे में पता नहीं लग पाता है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें स्प्लीन का इनलार्जमेंट हो जाता है, यानी उसकी साइज बड़ी हो जाती है। जब उसकी साइज बढ़ जाती है तो 10th रिब्स के नीचे तक बढ़ जाती है और वो रिब्स के बाहर हो जाती है। उस समय अगर आप पल्पिटेशन करते हैं तो आपके फिंगर्स में स्प्लीन के पल्पिटेशन की फीलिंग होगी। लेकिन अगर स्प्लीन नॉर्मल कंडीशन में है तो यहाँ पर कोई पल्पिटेशन आपको फील नहीं होगा। दूसरा पॉइंट है स्प्लीनेक्टोमी। अगर बॉडी की जरूरत है, अगर यह आवश्यक है कि स्प्लीन को हटाए बिना जीवन संभव नहीं है, तो इसका हम सर्जरी करके इसको शरीर से अलग भी कर सकते हैं। तो कोई बहुत वाइटल प्रॉब्लम पैदा होने वाली नहीं है जो जीवन को खतरा पैदा कर सकती है। अगला पॉइंट है स्प्लेनिक इन्फारक्शन। इन्फारक्शन का मतलब डेथ ऑफ द सेल, सेल की मृत्यु ड्यू टू लैक सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कमी की वजह से जब सेल की डेथ होती है तो उसको हम नाम देते हैं इन्फारक्शन। तो स्प्लीन के अंदर भी ये परिस्थितियां पैदा होती हैं। और होता क्या इसमें कि जो स्प्लीन के अंदर आर्टरीज हैं उनमें ब्लॉकेज हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ब्लड का फ्लो रुक जाता है, तो वहां पर एक पेन की फीलिंग होती है और वो पेन बाएं शोल्डर तक जाता है और पेन की फीलिंग वहां होती है। इसको भी हम रिफर्ड पेन की श्रेणी में रख सकते हैं। और जिस साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया पहली बार उसका नाम था केहर। उसी के नाम पर इस लक्षण को हम नाम दे देते हैं केहर साइंस। केहर साइंस पूछ लिया जाए या स्प्लेनिक इन्फारक्शन, ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छे सवालों की लिस्ट में आ सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि स्प्लेनिक इन्फारक्शन क्या है, तो आपको बताना होगा आर्टरी, ये स्प्लीन के अंदर जो आर्टरी है उनके अंदर ब्लड के फ्लो का रुकावट हो जाना, जिसकी वजह से लेफ्ट शोल्डर में पेन होती है। अगला पॉइंट है रिफर्ड पेन, मतलब पेन कहीं और हो और उसका कारण कहीं और, उस पेन को वहां ट्रांसफर कर दिया जाए तो उसको कहते हैं रिफर्ड पेन। रिफर माने दूसरी जगह रिफर कर देना, भेज देना। तो स्प्लीन के जो टिश्यूज हैं उन टिश्यूज में अगर कोई पैथोलॉजी डेवलप करती है या पेन का कोई कारण पैदा होता है तो वो पेन स्प्लीन के अंदर नहीं फील होकर के पहले कहाँ फील होती है, इपीगैस्ट्रियम रीजन। इपीगैस्ट्रियम रीजन क्या है? इट इज द मिडिल रीजन ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रिया एंड लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिया, अर्थात दाएं और बाएं हाइपोकॉन्ड्रिया के बीच में एब्डोमेन के 9 रीजन में एक ही आता है, इसको कहते हैं इपीगैस्ट्रियम। इपीगैस्ट्रियम का मतलब होता है इपी माने ऊपर, गैस्ट्रियम शब्द आया गैस्टर से, गैस्टर माने स्टमक। स्टमक के ठीक ऊपर जो एब्डोमेन का 9 में का एक डिवीजन है उसको नाम देते हैं इपीगैस्ट्रियम। तो पेन की फीलिंग वहां होती है क्योंकि ये जो कैप्सूल था अभी अगले फिगर में आपने देखा था, अगले एपिसोड के फिगर में ये जो कैप्सूल है उसमें स्ट्रेच होता है और उस पेन को वहां ले जाने में उसी की भूमिका होती है। 5वां पॉइंट है सूचर, मतलब सिलाई करना। स्प्लीन में अगर कोई छोटा मोटा टीयर हो जाता है तो उसको सिलाई करके भी उसकी आप मरम्मत कर सकते हैं, ट्रीटमेंट दे सकते हैं और व्यक्ति हेल्दी स्टेट में आ सकता है। अगला पॉइंट है स्प्लेनिक पंचर। अगर स्प्लीन के अंदर एबनॉर्मल फ्लूइड हो गई, कलेक्शन हो गया, उसको बॉडी के बाहर निकाले बिना उस व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। वो फ्लूइड बाहर निकालना आवश्यक है, उसको स्प्रेड करना आवश्यक है।
तो आपको करना क्या होगा, ये 9th और 10th रिब्स के बीच में जो इंटरकास्टल स्पेस होता है, इन द मिड एक्सिलरी लाइन पर आप नीडल को अंदर एंट्री कराएंगे और वहां से सक करेंगे तो उसमें इकट्ठा हुआ एबनॉर्मल फ्लूइड बॉडी के बाहर आ जाएगा और आज का एपिसोड